India woke up to chaos at its airports. Flights cancelled, passengers stranded, families sleeping on floors. And at the center of this unprecedented mess is one man, Peter Albers, the CEO of Indigo. As the crisis unfolds across Delhi, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad and other cities, the airline leadership is nowhere in sight. And now, after yesterday's video announcement by the Indigo CEO, the apology is raising more questions than answers. Indigo CEO Peter Albers' apology was short, carefully worded and expressed regret for the disruption. Let's in fact listen into his statement. Ladies and gentlemen, I'm Peter Albers, the CEO of Indigo. I want to share with you that we have experienced severe operational disruptions for the past few days. Since then, the crisis continued to aggravate, with today, December 5th, being the most severely impacted day, with the number of cancellations well over 1,000, or more than half of our number of daily flights. I, on behalf of all of us at Indigo, would like to extend our sincerest apologies for the major inconvenience this has caused to many of our customers on account of delays or cancellations. The situation is a result of various causes. Yet, for you as a customer, it's important how we as a... He says that the airline is working to stabilize operations and restore normalcy. But India's airports tell a very different story. Hotel rooms, none arranged, meals scarce, refunds delayed and basic information almost impossible to find. All these things which the CEO promised to fix was still happening on ground. So who is Peter Albers, a Dutch aviation veteran, former chief of KLM, a global industry insider with decades of experience? He joined Indigo in 2022 with the promise of bringing stability and growth to India's largest airline. Peter Albers was born in Schiedam, a small city in the Netherlands, where he studied logistics management and went on to complete a master's in business economics in 1992. He began his journey in aviation after joining KLM, Royal Dutch Airlines, as a supervisor at the Schiphol hub, hauling and loading aircraft. Over the years, Albers climbed the ranks, managerial roles in the Netherlands and posts overseas in Japan, Greece and Italy. By 2011, he had become KLM's chief operating officer. Then in 2014, he rose to become its president and chief executive officer. For 8 years, he led one of Europe's oldest airlines, steering a legacy career with gravity and global reach. Then in May 2022 came a turning point. Indigo, India's biggest domestic airline, announced that Peter Albers would take over as CEO. Albers succeeded Ronojoy Datta, who retired on 30th September 2022 after steering Indigo through the turbulent COVID period. Suddenly, a European aviation veteran who is steeped in legacy airline culture found himself at the helm of a fast-growing, low-cost carrier in one of the world's most dynamic aviation markets, India. He spoke of new frontiers, expansion, international routes and modernization, which is a vision of turning Indigo into more than just a domestic carrier. But as India's skies began to stir with demand, the pressure intensified. Operational challenges, flight cancellations, chaos at airports, and now massive cancellations that have left thousands stranded. Here is the man with decades of experience, almost 30 years, in some of the world's most sophisticated airlines. The man entrusted with increasing Indigo's global reach, reputation and reliability. Yet today his airline's passengers sleep on cold airport floors, wait endlessly at gates, scramble for information and hope for help that never arrives. When you have decades of global aviation pedigree, when you carry the banner of trusted, efficient, world-class service, and yet your passengers are left helpless, an apology starts to ring hollow. Because leadership is about responsibility. According to media reports, Peter has reportedly got a total compensation of approximately rupees 11.9 crores when he left KLM.
After joining Indigo in March 2023, he reportedly received 67,150 performance stock units or PSUs, which are worth approximately Rs 12.52 crores. His annual salary in Indigo reportedly is approximately Rs 5 crores. His total compensation in Indigo Airlines, including his salary, PSUs and other bonuses, is reportedly nearly Rs 17 crores. According to some reports, Peter Elber's net worth is $5 million, which is equivalent to Rs 44.96 crores. Where is the CEO when India's airports are drowning in chaos? Why is the communication so poor? Why are passengers learning about cancellations from display boards instead of the airline they trusted? This isn't just an airline meltdown, it's a moment of truth for Indigo and for its CEO. My colleague Bhavna Sisodia joins us live from Delhi Airport as we continue to track this massive aviation crisis. Bhavna, हम देख रहे हैं कि आज भी इंडिगो के कई स्टेटमेंट्स के बावजूद कई कैंसिलेशंस और कई डिलेज देखे जा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पे भी काफ़ी लगेज पड़ा हुआ है जिन लोगों की फ़्लाइट डिले या कैंसिल हुई है। इस वक्त क्या स्टेटस है वहाँ पर फ़्लाइट्स को लेकर? लोगों से क्या आपकी बातचीत हो पा रही है? क्या स्थिति है इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पे? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर फिलहाल दिल्ली इंडिया गांधी एयरपोर्ट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थिति जो है फिलहाल चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि इंडिगो की फ्लाइट जो है लगातार कैंसिल हो जा रही है। आज भी जो है 7 फ्लाइट कैंसिल हुई है। देखिए, मैं एक बार डिस्प्ले बोर्ड पे आपको दिखाना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं कि इंडिगो की फ्लाइट्स को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं कैंसिलेशन के मैसेज चलते हुए नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं बेंगलोर चेन्नई की जो फ्लाइट है वो कैंसिल होती हुई नजर आ रही है। वहीं ग्वालियर की फ्लाइट भी जो है कैंसिल हुई है और नागपुर की फ्लाइट भी जो कैंसिल हुई है, बेंगलोर की फ्लाइट कैंसिल हुई है, जयपुर की फ्लाइट कैंसिल हुई है। यानी कि लगभग कुल मिलाकर जो है 7 फ्लाइटें जो हैं आज कैंसिल हो चुकी हैं। अगर दिसंबर से बात की जाए तो दिसंबर की शुरुआत से ही जो इंडिगो की फ्लाइट्स हैं वो लगातार कैंसिल हो रही हैं, दोबारा रीशेड्यूल की जाती है। रीशेड्यूल के बाद भी जो है पैसेंजर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रीशेड्यूल जो 2-2 दिन में की जा रही है, कहीं ना कहीं पैसेंजर्स को घंटों से ज़्यादा जो है इंतज़ार करना पड़ता है। और वहीं अगर देखा जाए तो रहने की या खान पीन की व्यवस्था किसी तरीके से भी इंडिगो की तरफ से नहीं दी जा रही है। वहीं जिस तरीके से फ्लाइट डिले हुई है, आपको मैं एक चीज तस्वीर और दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं कि कितने हजारों की संख्या में जो है एयरपोर्ट पर जो है लगेज पड़े हुए हैं। ये उन लोगों के लगेज है जिनकी फ्लाइट डिले हुई है, जिनकी फ्लाइट कैंसिल हुई, वो दूसरे संसाधन के माध्यम से अपनी जगह पर तो पहुंच गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लगेज जो है वो यहीं पर छूटे हुए हैं। जो लगेज इंडिगो ने कल तक यानी कि सोमवार तक ये लगेज उनको पहुंचाने का वादा किया है, जिसके लगेज जो है यहाँ पर छूटे हैं। चूंकि देखा जाए तो बोर्डिंग के दौरान जब लगेज तो पहुंच जाता है, लेकिन फ्लाइट कैंसिलेशन के मैसेज इस तरीके से दिया जाता है तो कहीं ना कहीं पैसेंजर नाराज होकर वापस लौटते हैं। और जिनको इमरजेंसी में जाना हो तो कहीं ना कहीं उनको इमरजेंसी में पहुंचने के लिए लगेज यहाँ पर छोड़ गए, जो इंडिगो ने वापस देने के लिए सोमवार तक का समय निर्धारित किया है। वहीं जिस तरीके से लगातार इंडिगो की क्राइसिस देखने को मिल रही है, उसको लेकर भी अब सरकार सख्त रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। और कहा जा रहा है, साफ तौर पर सरकार द्वारा कहा गया है कि आज शाम तक जिनकी भी फ्लाइट कैंसिल हुई है उनको जो है रिफंड दिया जाए। तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी हजारों की संख्या में पैसेंजर्स जो हैं वो यहाँ पर परेशान हुए हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने के बावजूद भी टिकट जो है वो नहीं मिल पा रहे, और मिलते हैं तो वो कहीं ना कहीं कैंसिल होते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जो है पैसेंजर्स जो हैं वो परेशान होते नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं इंडिगो से जो पैसेंजर्स हैं उनका विश्वास उठता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिगो के CEO को जो है पीटर एल्बर्ट को जो है सो-कॉल्ड नोटिस जारी किया गया, जिसमें 24 घंटे के अंदर उन्हें जवाब तलब करना है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि जो इतनी ज़्यादा क्राइसिस जो है वो देखने को मिला और पैसेंजर्स की यात्रा में जो असुविधा हुई है उसको लेकर तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो इंडिगो के CEO को जो है DGCA में सबमिट कराने हैं, जवाब देना है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह हो पड़ी है। वहीं देखा जाए तो पीटर एल्बर्ट जो हैं उन्होंने एक्स के माध्यम से इस हुई असुविधा को लेकर माफ़ी मांगी। ये भी कहा
कहा कि रहने का, खाने का इंतजामात जो है पैसेंजर्स के लिए किया जाएगा, लेकिन ग्राउंड पर बात की जाए तो उस तरीके की व्यवस्था होती नज़र नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं पैसेंजर्स जो हैं वो परेशान होते नज़र आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि जहां सरकार द्वारा सख्त रुख, जहां कैंसिलेशन के पैसे वापस लौटाने की बात कही गई है, वहीं दूसरी तरफ जो पीटर एल्बर्ट हैं उनको जो जवाब तलब करना है, तो वो अपने सवालों के जवाब क्या देते हैं ये देखना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि बार बार ये बात कहना कि क्रू मेंबर्स की कमी के कारण इस तरीके की व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से लगभग अब तक 1700 से 2000 फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हुई हैं। और केवल दिल्ली में ही नहीं, तमाम जगहों पर, चाहे बाहर के देशों के बाहर राज्यों की बात की जाए तो वहां पर भी इसी तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। तो जवाब क्या सबमिट किया जाता है और स्थिति कब तक सामान्य होती है, अब इसको कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। Bilkul, Bhavna, thank you so much for joining us with all of those updates from the ground. But we have some breaking updates that we're tracking. Former Union Minister of Finance P. Chidambaram says that he is glad that the Ministry of Civil Aviation has woken up at last and capped the economy class fares. He says that the cap must continue as long as the airline duopoly exists, adding that without strong competition, price control is the only way to protect public interest. He said that the overwhelming majority of the passengers must be protected. My colleague Rainik Datta joins us from Kolkata Airport. Rainik, इस वक्त कोलकाता में क्या स्थिति है कैंसिलेशंस को लेकर? हम देख रहे हैं पी चिदम्बरम का भी स्टेटमेंट आ गया है अब ये फ्लाइट फेयर कैप के ऊपर। हालांकि अभी भी कई फ्लाइट्स की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाई हमें नज़र आ रही हैं सुबह से। हाँ एकदम ही देखिए, कोलकाता एयरपोर्ट का तस्वीर अगर आपको दिखाएंगे तो ठीक मेरा पीछे ये जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन बोर्ड है इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कल जिस तरीके का तस्वीर था आज तस्वीर थोड़ा बदला है। क्योंकि कल जैसे इंडिगो का बहुत सारे फ्लाइट को कैंसिल दिखा रहा था, रीशेड्यूल दिखा रहा था, डिले दिखा रहा था, मगर आज सुबह से मैक्सिमम जो फ्लाइट्स है उनको ऑन टाइम दिखा रहा है। मगर कुछ फ्लाइट्स ऐसे हैं जिसको डिले हो रहा है, कुछ फ्लाइट ऐसे हैं जिसको कैंसिल किया गया है। जैसे कि सुबह से जो तस्वीर देखने को मिल रहा था, बहुत सारे पैसेंजर्स जिनका कैंसिल हुआ था वो लोग इधर आए थे। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। मैडम, क्या इंडिगो से ट्रैवल कर रहे थे आप लोगों का फैमिली? हाँ। क्या सिचुएशन है अभी हमारे अभी फ्लाइट तो अभी अवेलेबल है, देख अभी ऑन टाइम? हाँ हाँ हाँ। तो आज ही क्या ट्रैवल डेट था कि हाँ, आज ही ट्रैवल डेट था? क्या आने के टाइम पे क्या एक मन में शंका था कि ये तो था ही, जो हाल है देख रहा हूँ टीवी पर, तो शंका तो था ही। एकदम ही। सर, इंडिगो से ट्रैवल कर रहे थे? না ইন্ডিগো আমার একটা ছোট ভাই ছিল, ও 4 তারিখ ফ্লাইট ছিল কলকাতা আগরতলা কলকাতা বোম্বে টু বাহরাইন। তারপরে ওর টিকিটটা ক্যান্সেল হয়ে গেল কলকাতা আসার পরে। তারপরে এখান থেকে আবার 7 তারিখে আজকে টিকিট দিয়েছে 1:30টার সময় इंडिगो की तरफ से कहा जा रहा है कि इनका जो भाई है उनका जो फ्लाइट था वो 4 तारीख को था, मगर वो फ्लाइट कैंसिल हो गया था, आज रीशेड्यूल किया गया था फ्लाइट को। तो क्या वो अंदर पहुंचे? अभी अंदर गया है, अभी बोर्डिंग मिला नहीं, मिल जाएगा तो मालूम पड़ जाएगा। हम बाहर खड़ा हो ऐसा है। वो अंदर पहुंचे हैं मगर अभी तक बोर्डिंग मिला नहीं। ऐसा बहुत सारे फैमिली मेंबर्स जो है वो इधर वेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि 2-3 दिन से दिखने को मिल रहा था इंडिगो का हालात, उसी को देखते हुए लोगों का कहना है। सर, इंडिगो से ट्रैवल कर रहे हैं? नहीं, एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं। क्या इंडिगो से ट्रैवल कर रहे थे? इंडिगो से ट्रैवल नहीं एकदम जो पैसेंजर्स इधर आ रहे हैं, मैक्सिमम पैसेंजर्स अभी अंदर जा रहे हैं। जैसे तस्वीर कुछ दिन से देखने को मिल रहा था कि पैसेंजर्स अंदर जा रहे हैं, मगर उन लोगों का फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो रहा है, डिले हो जा रहा है। मगर आज जो तस्वीर वो थोड़ा बदला है। आज बहुत सारे फ्लाइट जो है उसको मैक्सिमम फ्लाइट जो है उनको रीशेड्यूल करके आज दिया गया था, वो आज ऑन टाइम अभी फिलहाल है। मैं एक बार बात करने की कोशिश करूँगा। सर, इंडिगो से ट्रैवल कर रहे थे? हाँ। क्या सिचुएशन है? नहीं, अब ठीक है, अब हो गया। अभी हो गया है। कब आपका जाने का बात था? कल, मतलब मेरा तो परसों का था, वो लोग रीशेड्यूल करके आज ही दे दिया मेरे को। आज ही दे? आप कॉपरेट हो रहा है, अपॉइंट कर। तो एकदम ही पैसेंजर्स की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो तस्वीर 2 दिन से था वो तस्वीर थोड़ा बदला है। बहुत सारे पैसेंजर्स इधर आ रहे हैं जिनको रीशेड्यूल किया जा रहा है, रीशेड्यूल करके उनको फ्लाइट दिया जा रहा है। और आज भी जो फ्लाइट जा रहा है वो भी मैक्सिमम जो फ्लाइट्स है ऑन टाइम है, ऐसा उनके तरफ से कहा जा रहा है। दादा, इंडिगो से ट्रेवल कर रहे हैं? हाँ। क्या सिचुएशन है? अभी मेरे को
लग रहा कि कैंसिल हो गया, अंदर जाएंगे तब पता चलेगा सिचुएशन क्या है। ठीक, लोगों को मालूम नहीं। और इंडिगो की तरफ से कोई एसएमएस वगैरह या इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन आया है लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन? कैंसिल टिकट दिखा रहा है मेरे को। कैंसिल दिखा, हम्म, फ्लाइट कैंसिल। पे- कहाँ जा रहा था? सऊदी जाना था, अभी जाना ही पड़ेगा मेरे को आज के डेट में, नहीं तो मेरा लाइफ खराब हो जाएगा। आप लोग भी जा रहे हैं? नहीं अकेला जा रहा हूँ। आप आके हाँ, मैं तो अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी क्या अंदर जाएंगे, क्या कोई कैंसिलेशन रिफंड कर रहे हैं कि रीशेड्यूल कर रहे हैं, कुछ बताइए। पता नहीं, अभी अंदर जाएंगे तब पता चलेगा क्या होगा, क्या देगा कि नहीं देगा, मेरे को ठीक से पता भी नहीं है अभी क्या होगा। मैं ये देखो ना, मेरा टिकट, ये आज का ये टिकट है, ठीक है, ये टिकट है, हाँ ये टिकट है, हाँ दिसंबर का ये डेट है और दोपहर 1:30 पे ये फ्लाइट कोलकाता एयरपोर्ट से छोड़ने वाला था। जो फ्लाइट इनको कैंसिल किया गया है ऐसा इनकी तरफ से कहा जा रहा है और अभी वो क्या करेंगे उनको मालूम नहीं है। ऐसा बहुत सारे पैसेंजर्स जो है वो इधर मौजूद है। सर क्या इंडिगो से ट्रैवल कर रहे थे? No, I'm just coming. ओके, इंडिगो से ट्रैवल I was traveling. क्या सिचुएशन है अभी? तो सिचुएशन एक्चुअली कल फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, बट समहाउ वी स्पोक टू इंडिगो ऑफिशियल्स एंड वन ऑफ द कस्टमर एग्जीक्यूटिव हैड अरेंज्ड सेकेंड फ्लाइट फॉर अस, कनेक्टेड है। तो बेसिकली मतलब मुंबई टू बागडोगरा ट्रैवल कर रहे थे, तो जी। हमने फिर उन्होंने कनेक्टेड। Ji Rainik, bilkul, thank you so much for joining us with those details from the ground. We're running short on time, but we'll be right back with more updates. But for now, let's slip into a very short break. 25 लाख का हॉस्पिटल